Then the next generation, maybe they got a little colder. Somebody else got a little colder. The first thing you know, it become a family tradition. That's what Pentecost has become to us. A family tradition. तब शायद आने वाली नस्ल और ठंडी पड़ जाए, कोई भी थोड़ा और ठंडा पड़ जाए। पहली बात जो आप जानते हैं, ये घराने की रस्म बन जाती है। यही पेंतीकोस्त हमारे लिए है, एक खानदान की रस्म बना है। We get down and say, wasn't that television show pretty good tonight? Wonder what they did down in church. Lord Jesus, He, oh mercy. See? It's a family tradition. हम आते हैं और कहते हैं टेलीविजन प्रोग्राम रात अच्छा नहीं था। हैरत है उन्होंने कलीसिया में क्या किया। खुदावंद यीशु शिफा देता है, ओ रहम हो। समझे, ये खानदानी रस्म है। You know, I spoke in tongues the other day. I belong to this or that. You know, oh, it's a family tradition. आप जानते हैं, मैं किसी रोज गैर जुबानों में बोला, मैं इस या उससे तल्लक रखता हूँ। आप जानते हैं, जी हाँ, हो, ये एक खानदानी रस्म है। You know what God said? God said your fats and rams stink in my nose. That's right. Your sacrifices become a stink. आप जानते हैं खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा तुम्हारी चर्बी और मेंढे मुझे बदबूदार लगते हैं। ये दुरुस्त बात है, तुम्हारी कुर्बानी बदबूदार हो गई। And so as the Pentecostal sacrifices, and all of our denominational cut-ups and carry-on, our women and men doing the way they do, a form of godliness. और इसी तरह से पेंटिकोस्टल और हमारे सारे तंजीमी टुकड़े इसी तरह कर रहे हैं, और जैसे हमारी खवातीन और मर्द कर रहे हैं, यानी दीनदारी की एक किस्म। Work the music up and somebody jump up and down a while and it's all over like a bucket of water float on if the word of God happened to come forth and say something. जब म्यूजिक चलता और ऊपर नीचे कूदते, और यही सबब है अगर खुदा का कलाम सामने आता है और कुछ कहता है तो ऐसे कि उन पर पानी की बाल्टी अंडेल दी गई हो। What's the matter? Your sacrifices begin to stink before Jehovah. क्या मसला है कि आपकी कुर्बानियां यहोवा के सामने बदबू देने लगी हैं। And it was at that time that the Isaiah come on the scene. I told him, I'll give you an everlasting sign, a virgin shall conceive. और ये उस वक्त भी था जब यिसाया मंजरे आम पर आया और उन्हें बताया, मैं तुम्हें एक अब्दी निशान दूंगा, एक कंवारी हामला होगी। See, there you are. Not dead forms and creeds, no, but a living articles, a living God that's raised from the dead and a living among us. समझे, आप यहाँ हैं, ना अकीदों और मुर्दा हालत में नहीं, बल्कि एक जिंदा मुकाशफा, एक जिंदा खुदा जो मुर्दों में से जी उठा है और हमारे दरमियान रह रहा है। Some of them, these churches like that, that believes in these things, they deny there's such a thing as a token. A fellow tried to tell me only the 12 apostles received the Holy Ghost. That's all. Yeah. Oh. उनमें से कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो इन बातों का यकीन करती हैं, मगर वो इस तरह की बातों का यकीन नहीं करती जैसे कि निशान के तौर पर कोई ऐसी अलामत या टोकन। ठीक है, एक साथी ने मुझे बताने की कोशिश की, सिर्फ उन 12 रसूलों ही ने रूल कुछ पाया, बस ये वहां थे। हाँ, उफ। But we who believe the word know different. We know that this is a living presence. For how do we know it's a living presence of Christ, the Spirit that's among us? It does the same thing He does. That's the evidence of it. मगर हम जो कलाम का यकीन करते हैं, हम मुख्तलिफ जानते हैं। हम जानते हैं कि ये जिंदा खुदा की हजूरी है। हम कैसे जानते हैं कि ये मसीह की जिंदा हजूरी और रूल कुछ की हजूरी है? ये वही काम है जो वो करता है, जो कि इसकी गवाही है। A vine is known by the fruit it bears. And then if that first vine come up and they wrote a book of Acts behind it, and the same thing that Jesus done, the apostles done, then when that vine comes up again, it does the same thing. एक अंगूर की बेल इसके फल से जानी जाती है, और तब अगर वो पहली अंगूर की बेल आई और उन्होंने अपने पीछे एक ईमाल की किताब लिखी और वही बातें जो यीशु ने की, रसूलों ने भी की, तब जब वो अंगूर की बेल दोबारा आती है, वो वही काम करती है। Hebrews 13:8 says he's the same. Oh my, proves that God has raised him up for us according to his promised word. समझे, अब्रानियों 13:8 कहती है, वो यकसा है। हो,
मेरे खुदाया, ये साबित करता है कि खुदा ने अपने वादे के कलाम के मुताबिक इसे हमारे लिए खड़ा किया है। Seal of promise. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Ghost of God, whereby you're sealed until the day of your redemption." Not to the next revival, until the day of your redemption. वादे की मोहर इफिसियों 4:30 कहती है, और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन तक के लिए मोहर हुई है, ना कि अगली बेदारी तक, बल्कि तुम्हारी मखलसी के दिन के लिए। Being baptized into it according to 1 Corinthians 12, and in him is the fullness, and no sin is recognized in him. He is born of God, does not commit sin. The seed of God remains in him, and he cannot sin. इसमें बपतिस्मा लेने से पहला करंथियों 12 के मुताबिक, और इसमें सारी ममूरी है, और इसमें किसी गुनाह की शनाख्त नहीं है। वो जो खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं करता, खुदा का तुखम उसमें कायम रहता है, और वो गुनाह कर ही नहीं सकता। How can he when the token's there? The token is a sign he's been accepted. वो कैसे कर सकता है जबकि निशान वहाँ मौजूद है? निशान इस बात की अलामत है कि वो कबूल कर लिया गया है। Well, you say, I sinned. Well, then you never had the token. See? The token is the barrier, shows that the price is paid. और ठीक है, आप कहते हैं मैं गुनाह करता हूँ, ठीक है, तो फिर आपके पास निशान कभी नहीं था। समझे? निशान वो रुकावट है जो जाहिर करता है कि कीमत चुका दी गई है। If Satan tries to hand it to you, just think of this. If Satan tries to hand you some sickness or tries to hand you something, you know what to do? Show him your token. अगर शैतान आपको पकड़ने की कोशिश करता है, जरा इस पर सोचिए, अगर शैतान आपको बीमारी देने की कोशिश करता है या आपको कुछ देने की कोशिश करता है, आप जानते हैं क्या करना है? उसे अपना निशान दिखाएं। Sure, sickness strikes the Christian. Show him your token and prove to him that you're a purchased product of God. Resist the devil and he'll flee from you. यकीनन बीमारी एक मसीही पर हमला करती है। इसे अपना निशान दिखाएं, उसे साबित करें कि आप खुदा की खरीदी हुई चीज हैं। शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। Hold the token over your unmovable faith in his promised word. अपने ना हिलने वाले ईमान के ऊपर निशान को थामे रहें जो इसके कलाम में वादा किया गया है। God once gave a rainbow sign for a token. I'm closing. Gave a rainbow sign for a token. I've just got about 10 minutes and then have my prayer line. He ever remained true to that token, did he? He does yet. एक दफा खुदा ने कोसे कज़ा की अलामत निशान के लिए दी। मैं खत्म कर रहा हूँ। कोसे कज़ा की अलामत एक निशान के लिए दी। मुझे सिर्फ तकरीबन 10 मिनट मिले हैं और फिर दुआया कतार बनानी है। वो हमेशा ही से इस निशान की सच्चाई पर कायम रहा। क्या वो रहा? वो अब भी यही करता है। All these thousands of years, he has never once, one time failed to display it. He was true to that token. Shows us that he ever and never will fail to honor his tokens. इन तमाम हजारों बरस में वो इसे जाहिर करने में एक मर्तबा भी नाकाम नहीं हुआ। वो उस निशान में सच्चा है जो ये जाहिर करता है कि वो हमेशा कभी भी अपने निशानों को अजाज देने में नाकाम नहीं होगा। I don't care if Jesus don't come for 10,000 years, you have the token, he's still got to honor it. No matter how many things changes and whatever more, he's got to honor that token. He said he would. मैं परवाह नहीं करता। अगर यीशु 10,000 सालों तक ना आए, आपके पास निशान है। अभी तक उसके पास इसका अजाज है। इससे कोई गर्ज नहीं कि कितनी ही चीजें तब्दील हो जाएं और जो कुछ भी मजीद हो, उसने इस निशान को अजाज देना है। उसने ये कहा, वो करेगा। All right. He expects us now to display his token over our God-given faith, the ever unbelieving cult in the nation and in the world that believes that signs and wonders don't follow the believers. ठीक है, हर एक ना ईमान रखने वाला मजहब जो कौम के अंदर और दुनिया में है, जो के ईमान रखते हैं कि निशान और हैरत अंगेज काम ईमानदारों में नहीं होते। खुदा हमसे तवक्को करता है कि उसके दिए गए ईमान पर हम खुदा के निशान को जाहिर करें। And be true to this token and shows that the fare has been paid and we've been accepted for the resurrection, having the token life inside of us.
आप इस निशान पर सच्चे रहें जो ये जाहिर करता है कि आपका किराया अदा हो चुका है और हम जी उठने के लिए कबूल हो चुके हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर निशान रखना है। That's a cutting message, but it's the truth. That's what we need, is truth. God help us to know truth. You shall know the truth, and the truth shall make you free. ये पैगाम तराशने वाला है, लेकिन ये सच्चाई है। जैसा कि हमें सच्चाई की जरूरत है, खुदा सच्चाई को जानने में हमारी मदद करे। जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। I claim that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I believe that God gives the Holy Ghost as a token right now, just before the exodus of the bride going out of the church. मैं दावा करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा रूह कुद्स को एक निशान के तौर पर देता है, ठीक अब जैसे खरूज से थोड़ी देर पहले दुल्हन कलीसिया से बाहर जा रही है। I believe it's so much Tommy Rotten people saying they shouted, they spoke in tongues. I believe in those things, but you can't rely on that. How can you rely on that and then deny the word? See? मुझे यकीन है बड़ी गड़बड़ है, और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नारे लगाए, वो गैर जुबानों में बोले। मैं इन बातों पर ईमान रखता हूँ, मगर आप इस पर तकिया नहीं कर सकते। आप कैसे इस पर तकिया कर सकते हैं जबकि कलाम का इनकार करते हैं? समझे? The token is the word, identified in you, living itself out. That's God being His own interpreter. निशान कलाम है जो आप में शनाख्त हुआ और खुद जिंदगी दे रहा है। ये खुदा खुद अपना तर्जमान है। You don't have to say, well, you interpret my tongue. That ain't it. He interprets your life by the word. आपको ये नहीं कहना है, ठीक है, अब आप मेरी जुबान का तर्जमा करें। वो ये नहीं है, वो आपकी जिंदगी की तर्जमानी अपने कलाम के वसीला से करता है। When He takes your word, what you are, and identifies word to there don't need any interpretation. It's already there. God does His own interpretation. And we've had these promises for the day. जब वो आपका कलाम लेता है, आप क्या हैं, और अपने कलाम की आपके जरिए पहचान करवाता है, तो वहाँ किसी की तर्जमानी की जरूरत नहीं है। ये पहले ही वहाँ है। खुदा अपनी तर्जमानी खुद करता है, और आज इस दिन के लिए हमारे पास ये वादे हैं। Oh, Dallas, you lovely bunch of Christians. Don't be carried away with this stuff today that you see going around, cause it's going to perish. ओ डिलास, तुम मसीहों का प्यारा झुंड है। आज इस चीज को देखते हुए जो आस पास हो रहा है, अपने साथ ना ले जाना। इसकी वजह यह है कि ये तबाह होने जा रही हैं। Play that token always. Just play that token. Read the Bible. Come up to everything. And if your spirit in you don't say amen to that, then you better go back and change that you got for the token. You haven't got it. उस निशान को हमेशा हरकत में आने दें। इस निशान को जाहिर करें, बाइबल पढ़ें, हर चीज को आने दें। और अगर आपकी रूह जो आप में है आमीन नहीं कहती, तो इससे अच्छा था कि आप वापस आकर जो आप में है उसे तब्दील कर देते, उस निशान के लिए जो आपने हासिल नहीं किया। I know that's a whole lot to be seen here in one afternoon. It's right now 4:30. It's time now that we can get out by 5 o'clock with the prayer line. मैं जानता हूँ कि आज दोपहर सारी बातों के कहने का वक्त यही है। अब ठीक 4:30 हो रहे हैं। अब ये वक्त है, और अगर हो सके तो हम दुआया कतार के साथ 5 बजे तक बाहर निकल जाएंगे। Do you believe that Jesus Christ lives and reigns today? You believe what I've told you is the truth? It's a token, a requirement. क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आज जिंदा है और बादशाही करता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि जो मैंने आपको बताया यह सच्चाई है? ये निशान है जो मांग है। I only can speak what is truth. I only speak what I see, what I hear, what's revealed to me. मैं सिर्फ सच को बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो देखता हूँ। मैं वही सुनता हूँ जो मुझ पर आश्कारा किया गया। And when I say this of the tens of thousands of times, not one time has it ever failed to be true. Now that has to be God. और मैं ये क्यों कहता हूँ हजारों हजार बार, एक बार भी वो सच होने के लिए नाकाम नहीं हुआ। अब ये तो सिर्फ खुदा ही होना चाहिए।
That has to be God. Well, would God give a ministry like that to somebody who didn't know what they're talking about? Would He identify Himself as that seer there and then turn around and give him a mixed up word? अब ये तो खुदा ही होना चाहिए, ठीक है। क्या खुदा किसी को इस तरह की खिदमत देगा जो कि नहीं जानते कि वो किस चीज पर बात कर रहे थे? नहीं। क्या ये खुद को गैबीन पहचान करवा पाएगा? और क्या उसको अमेजिश ज़दा कलाम देगा? नहीं। The guy that denies it's the one's mixed up. God ain't mixed up. God's His own interpreter. वो शख्स जो इसका इनकार करता है वो मखलूत है और खुदा मखलूत नहीं है। खुदा खुद अपना तर्जमान है। Receive the token. Don't rest upon joining any church or any forms or anything. Get the token. Hold it. It's the only thing that God will recognize. निशान को हासिल करो। किसी कलीसिया पर या किसी और किस्म या किसी और चीज पर तकिया ना करो। निशान को हासिल करो, इसे थामो। सिर्फ यही वो चीज है जिसे खुदा पहचानेगा। When you come down to that hour, when it comes to your death, you better hold that token over yourself, knowing that in the day of His coming, that resurrection, I can present that token. जब आप इस वक्त पर आते हैं, जब ये आपकी मौत की तरफ आता है, तो बेहतर है कि आप इस निशान को अपने ऊपर थामे रहें, ये जानते हुए कि उसकी आमद के दिन जो कि जी उठना है, मैं इस निशान को पेश कर सकूंगा। It won't be in this body, it's rotted up, but in this spirit that cannot die, it's eternal life. The token rests there. And He promised I'll raise him up again at the last day. ये उस बदन में नहीं होगा, ये बदन तो बसीदा हो गया, मगर रूह में जो मर नहीं सकती, ये अब्दी जिंदगी है। निशान वहां पर ठहरता है और उसने वादा किया, मैं उसे आखिरी दिन फिर दोबारा उठा खड़ा करूंगा। That same Jesus Christ is here. He is the messenger. Here is the message, and He is the messenger here to identify His message. वही यीशु मसीह यहाँ पर है, वो पैगंबर है, यहाँ पैगाम है। वो यहाँ पैगंबर है जो अपने पैगाम की शनाख्त करता है। I'm not the messenger. He is the messenger. And this is the message. And if you got a spirit that disagrees with that, how can it be the messenger of the message? Only the token will identify. मैं पैगाम लाने वाला नहीं हूँ, वो पैगाम लाने वाला है और ये पैगाम है। और अगर आपकी रूह इसके साथ मुत्फिक नहीं होती तो फिर ये पैगाम को लाने वाला पैगाम का पैगंबर कैसे हो सकता है? सिर्फ निशान ही इसकी शनाख्त करेगा। Amen. I feel religious. I really do. I feel like I could fly away right now. For I know who I have believed and I've seen my life identified with Him in His resurrection. आमीन। मैं खुदा में महसूस कर रहा हूँ, मैं वाकई ही करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर ईमान रखा है और मैंने अपनी जिंदगी उसके जी उठने में पहचानी है। His presence is here. Accept it, friends. Please do. Down in your heart. इसकी हजूरी यहाँ मौजूद है, इसे कबूल करें। दोस्तों, मेहरबानी से कर लें, अपने दिलों में उतारें। I know we all come up around the altar and pray. That's an old Methodist idea. They never did do that in the Bible. The Bible said, as many as believe was baptized. That's right. मैं जानता हूँ कि हम सब मज़बा के सामने आसपास आकर दुआ करते हैं। ये मेथोडिस्ट का पुराना ख्याल है। बाइबल में ये उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। बाइबल ने फरमाया, जितनों ने ईमान रखा उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो कि दुरुस्त है। No such thing as an altar call in the Bible. That's something we added, which is all right. Anything God blesses, it's all right. बाइबल में मज़बा पर बुलाने जैसी कोई बात नहीं है। ये वो कुछ है जो हमने शामिल किया, जो कि दुरुस्त है। जिस चीज को खुदा बरकत दे, ये दुरुस्त है। Like the anoint cloths, they never such thing as the Bible. They've taken from the body of Paul. I think it's just an apron. जैसे कि वो कपड़े को मसा करते, बाइबल में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। वो पालूस के बदन से अपने रुमाल और पेशबंद लगाते थे। But any way you want to do it, it's all right. In your seat at the altar, where it is the only thing apply that a token to you. मगर जो भी है, आप ये करना चाहते हैं, ये दुरुस्त है। मज़बे पर, अपनी जगह पर या जहाँ कहीं भी, सिर्फ यही बात है कि आप इस निशान को अपने ऊपर लागू करें। Then look yourself over. Look what kind of life, what's going on. See if it's been applied or not. If it hasn't, then lay ever what you got aside and come back till the token is applied. तब अपने आप को देखें
कि किस तरह जिंदगी गुजारी और क्या चल रहा है। देखें ये लागू हो गया है या नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो जो भी आपके पास है उसे एक तरफ बिछा दें और फिर वापस आएं जब तक कि निशान ना लागू हो।